A very good evening to all of you. I can see some lovely faces across the screen. A digital hi to everyone. I would request all of you, for whosoever it's practically possible, to start their videos. Great. Today people are in full prep mode. मेरी पिछली बार की advice काफी लोगों ने seriously ले ली है, and they are looking like FCR participants. Wonderful. See, the energy changes when you have, when you look a certain way, when you feel a certain way, you want to be that part. So I hope you understood what I was trying to convey last time. And of course, first thing that you all need to do is get a notepad and a pen handy. Right away, guys. 2 minutes you have. Okay, some were already prepared. Very smart. Hello, ma'am. Excuse me. Sorry to interrupt you. This is Meghna Sharma. Yes, Meghna. Actually, I am traveling, so मेरा joining तो है, मैंने earphone लगा रखा है, but मैं camera on नहीं कर सकती हूँ. मैं travel कर रही हूँ, घर पे जा रही हूँ. It's okay, Meghna. You don't have to singularly tell me that. I said जिसके लिए practically possible है, ठीक है? No issue. Okay, thank you, ma'am. Most welcome. Okay, so we are all set. Give me a thumbs up if we are all ready, and let's get started. Okay, so this one is going to be a very important and integral session because आपके आगे वाले सारे rounds की information हम इसमें brief out करने वाले हैं. Okay, we do not have any expert, but the FCR team members here today. Of course, we have our boss lady indeed, our director of Forever Star India, Miss Kirti Chaudhary. And we have our lovely Jaya, who has been behind the phones talking to you guys, guiding you through it all, Jaya Chauhan, our project director. So I welcome you both, and I hope we're going to create a great space out here for all the participants. So to start with, I would, like I said, so please be very attentive. We will be taking questions in the end, but pehle sunna hai, okay? The listening part comes into question here. You do not, पहले ही questions बना के मत बैठ जाना कि मुझे ये पूछना है. पहले सुनना, पूरी चीज समझना, and then we will figure out how we'll go about it. Okay? All set? So can I see some smiles across the screen, please? Great, lovely. Okay. So there are going to be 3 talent rounds that you guys have to go through. हर talent round की training होगी. आज batch Q भी इसमें है. So please do not get confused. I know batch Q का talent round 1 हो चुका है. So do not get confused कि आपको दोबारा करना है या नहीं. नहीं, that's not the case. This is just an information session, but a very important one because ये information repeat नहीं की जाएगी. Only the PDFs will be sent to you, which basically means the written note. Okay? So let's start with the information now. 3 talent rounds. तीनों में अलग-अलग criterias का judgment. The first talent round is going to be about your introduction, your presentation, and of course, talent round में अगर सबसे बड़ा word है वो है talent. तो आपका talent is going to take the cake away. So I am sharing a PDF. Do not panic. ये PDF आपको भेजा भी जाएगा. But right now, concentrate on what I'm showing and what I'm talking about. Okay? So just a second. Can you all see the PDF? Give me a thumbs up, please. Great. So talent round 1, total score 10, time limit 90 seconds, dress code semi-formal. So the idea remains you have to showcase your talent and skills while introducing yourself and your goals for life. 5 criteria जिस पे आपका judgment होगा. सबसे पहला आपकी presentation skills. Second, your virtual appearance. Third, your content. Fourth, voice modulation and intonation. Fifth, your talent and skills presentation. Okay? And you will be marked out of 10 in each of the 3 rounds by jury, and your score for each round will be uploaded on your FCR profile, which is basically relevant to the website of Forever Star India. Okay? So now, इसमें जो सबसे important key factor है that you need to understand is
टैलेंट स्किल्स प्रेजेंटेशन। ओके, सो अगर आपके पास 90 सेकेंड्स हैं, सबसे पहले तो ये समझना है कि अगर वहां पे टाइम लिमिट 90 लिखा है, यू नीड टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट, यू कैन नॉट टेक दैट लाइटली। एक्सीडिंग 90 सेकेंड वुड डायरेक्टली मीन कि आप एक क्राइटेरिया क्रॉस कर रहे हो। इट शोज लैक ऑफ प्रेपरेशन, तैयारी की कमी शो करता है। सो ऑफ कोर्स सबसे पहली चीज जो आपको शुरुआत में करनी है, आपका इंट्रोडक्शन से आप शुरुआत करोगे, टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ। ऑडिशंस के टाइम आप सबने इंट्रोडक्शन दिया था, बट दिस वन नीड्स टू बी मोर प्रिपेयर्ड, मोर प्रोफेशनल, एंड ऑफ कोर्स आपका एक पैशन, व्हाई यू वांट टू बी हियर, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, व्हाई डू यू वांट टू विन दैट क्राउन, नीड्स टू कम थ्रू। वो दिखना चाहिए एविडेंटली, एंड चॉइस ऑफ वर्ड्स, choice of presentation is going to be very, very important. Okay. Secondly, make sure that your virtual appearance and content, इसके ऊपर बैच R और S को proper training दी जाएगी, जो कि next week schedule की जाएगी. Okay, so there will be an image consultant coming on board who will be talking about your virtual appearance and presentation skills, और वो properly आपको समझाएंगे कि अगर आप screen के सामने अपने आप को present कर रहे हो, because see, now it's just the box that we have, right? अगर ऑफलाइन होता तो इट वुड हैव बीन मच इजियर, यू वुड हैव हैड थिंग्स अंडर योर कंट्रोल, पर ऑनलाइन में सिर्फ इतना ही दिखता है, यू कांट सी एनीथिंग एल्स। सो उसके लिए एक प्रॉपर इमेज कंसल्टेंट ऑन बोर्ड आएंगे, एंड शी विल बी टॉकिंग एंड टीचिंग यू गाइज अबाउट हाउ टू गो अबाउट इट। ओके, लेकिन टैलेंट और स्किल्स प्रेजेंटेशन एक ऐसी चीज है जो आप सब में इंडिविजुअलिस्टिक एग्जिस्ट करती है, राइट? आप सबका एक अपना टैलेंट है, अपना स्किल है। नाउ टैलेंट प्रेजेंटेशन में दो तरह का टैलेंट प्रेजेंटेशन होता है। मैं ये क्विट कर रही हूँ सो दैट आई कैन सी ऑल ऑफ यू, एंड जस्ट अ सेकंड, स्टॉप शेयर। टैलेंट और स्किल प्रेजेंटेशन में दो तरह के टैलेंट्स होते हैं। वन इज स्टैटिक टैलेंट, जो आप कभी भी सपोज इफ यू आर इनटू पेंटिंग, यू आर इनटू समथिंग दैट यू कैन पिक अप एंड शो, आप कुछ भी स्पेसिफिकली तैयार करके रख सकते हो, बट उसमें भी दो चीजें होती हैं। So if I'm showing you a painting from here, I don't think you will be able to see it. You need to be conscious कि अगर आप कुछ भी present कर रहे हो, वो सामने visible कैसे है ना? दूसरा टैलेंट होता है जिसमें physical movement involve होती है, जैसे कि अगर most people are into dancing. From what I remember from your auditions, most of the women mentioned that they enjoy dancing a lot. तो अगर आप डांस कर रहे हो तो आपको और भी ज्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल दैट आपका डिवाइस यानी कि आपका म्यूजिक रेडी है, वो म्यूजिक सामने वाले को सुनाई दे रहा है या नहीं थ्रू द जूम मीटिंग। ओके, एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू डू दैट इन्वॉल्व्स फिजिकल मूवमेंट, यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस ऑफ इट। ठीक है, बहुत ज्यादा ध्यान में रख के कि मैं प्रॉपरली विजिबल हूं या नहीं, एंड द टैलेंट इज अ मस्ट। अब उन 90 सेकेंड्स में आप अपने टैलेंट और इंट्रोडक्शन को कितने रेशियो में डिवाइड करते हो, वो आपका चॉइस है, बट इट हैज टू मेक अ फेयर सेंस। ऐसा नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन में सिर्फ अपना नाम बता दो एंड यू स्टार्ट विद योर टैलेंट। No, that is the challenge of the timing that we have put into. You have to be very very conscious. Now of course आप लोग later batches हो तो आपके पास एक सबसे बड़ा फायदा है, जो कि आप पुराने batches की talent rounds YouTube पे देख सकते हो। You can check how they have performed, because see, जब आप सेम चीजें देखते हो ना, आपको कंपटीशन की तैयारी करने में हेल्प मिलती है, राइट? बिकॉज यू अंडरस्टैंड कैसे कैसे किसने परफॉर्म किया था। some people have performed 10 talents also, some people have performed only one talent. It's completely your choice कि आप उन 90 seconds को कैसे divide करते हो और कितने talent present करना चाहते हो। My personal suggestion here is, rather than putting too much into one one go, divide and select what you want to present, क्योंकि वो जो 90 seconds हैं, you have to use them very wisely and make sure कि आप अपना best ही आगे रखो, rather than putting it all and showing, because अलग अलग मौके आएंगे अलग अलग अपने talent present करने के लिए। ठीक है, so I hope this far I have made sense. Give me a thumbs up if all clear so far. Of course I will be taking questions in the end. Now if you noticed one thing in the PDF, that was dress code being semi-formal. Okay, so now most of you will be wondering कि what if my talent is something that I have to जैसे कई लोग क्लासिकल डांसर्स होते हैं तो उनको एक सर्टेन कॉस्ट्यूम पहनना होता है टू लुक द सर्टेन वे। सो इन दैट केस ऑटोमेटिकली आपकी आउटफिट सेमी फॉर्मल में ही आ जाती है, बिकॉज सी टैलेंट दैट काइंड ऑफ क्लासिकल ट्रेनिंग ऑटोमेटिकली शोज दैट इट्स अ वेरी फॉर्मल आउटफिट, राइट? ट्रेनिंग हर चीज को फॉर्मल बना देती है, सो यू डू नॉट हैव टू वरी कि मुझे कुछ सेमी फॉर्मल पहनना है। एंड टू क्लियर द एयर, सेमी फॉर्मल डज नॉट ओनली मीन वेस्टर्न क्लोथ्स।
a good kurta, a good sari can also look semi-formal, but the choice has to be correct. Okay, I'm sure you guys will understand the difference. Casual t-shirt में और एक casual साड़ी में और एक formal साड़ी में बहुत फर्क होता है, ठीक है? So I think this is it about talent round 1. जब talent round 1 की training होगी, I will be taking up further details also, ताकि क्योंकि जब एक training complete होती है तो it makes more sense on what you have to do, right? But this is the brief of it. All right. So now, of course, over to Kirti ma'am. She will be talking about talent round 2 in detail. Welcome on board, Kirti ma'am. Over to you. Thank you. Thank you so much, Harry. And a very good evening to my beautiful ladies present here for becoming Miss and Mrs. India 2021. So, a lot of you are looking too stressed. Stress लेने की जरूरत नहीं है. अभी तो सिर्फ talent round 1 की details आपको बताई है हमने. Right? Just take everything in. सब कुछ सुनना है, सब कुछ note down करना है. You have to be considerate of each and every point that Harry has mentioned for your talent round 1, because trust me, talent round 1 is going to make way for the further rounds. ऐसा नहीं है कि talent round 1 में जो सीखा वहां पे appear किया and you just forget it then and there. No, it is going to help you in the further rounds. आपकी virtual presence कैसे है, आप किस तरीके से screen पे खुद को present कर रहे हैं, किस तरीके से dress up होके आ रहे हैं, how confident you are while talking about yourselves. Now all of this is going to help you in talent round 2 and talent round 3 as well. अब talent round 1 I'm sure सबको clear है. Just give me a thumbs up. Everyone's clear about talent round 1. क्या होने वाला है, कैसे आपकी scoring होगी? Everyone? Perfect, perfect. So now let's talk about talent round 2. Harry, if you could share your screen. Okay. So when we talk about talent round 2, we will be taking everything gradually. Talent round 1 is completely about yourselves, how you're introducing yourself, आप कैसे अपने talent को present करते हैं एक certain time limit में, right? If I talk about talent round 2, आपको अपनी virtual presence का, अपने presentation skills का ध्यान रखते हुए अपनी makeup skills को portray करना है, right? And as we say that an expert is going to train you, but trust me that, most of us, we think that why makeup? Why do we need to do makeup? We're already so beautiful. Yes, all of you are already beautiful. Makeup jo hota hai, it is not to hide your imperfections, but it is to enhance your own features, enhance your personality. यानी कि अगर आप 80% confident हैं, and when you do the right makeup on your face, and when you're wearing the perfect attire, tell me, don't you feel more confident? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो यहाँ से यहाँ पे आ जाता है. यानी कि मेकअप enhances your personality, enhances your confidence, right? So do not ever be apprehensive about using makeup on your skin. Now, if I specifically talk about the rules that we're going to follow in talent round 2, the total score will be 10. चाहे वो talent round 1 हो, 2 हो या 3 हो, तीनों राउंड्स में जो आपका स्कोर होगा वो इंडिविजुअली आउट ऑफ 10 आपको दिया जाएगा. If I talk about the time limit, it is 1.5 minutes. आपको 90 seconds का टाइम दिया जाएगा. Now, how are you going to come in front of the screen? आप मेकअप यहाँ पे आके नहीं करने वाले हैं. You will be doing your makeup already. आप already makeup अपने हिसाब से, whatever you want to present in front of the world. It may be about your personality traits. If you're quirky, you can opt for a quirky makeup. If you're very subtle and very simple, then you can go for a subtle makeup. If you think that your personality is bold, then you can go for a bold makeup. यानी कि आप खुद की personality को makeup के through present कर सकते हो. One thing, you have to opt for a theme. You can represent your city, you can represent your state, या फिर आप अपने culture को भी अपने makeup के through represent कर सकते हो. Because it will be about your whole self. What attire you're wearing, what jewelry you're wearing, what kind of makeup you've done, what kind of footwear you've worn. ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ मेरा फेस ही दिखने वाला है तो मैं सिर्फ फेस पे मेकअप करके आ जाऊंगी. No, you have to show yourself completely to the jury members. जैसे अभी आप बैठे हैं, बहुत बार ऐसे होता है कि participants सिर्फ अपने मेकअप के बारे में बात करते हैं, अपनी थीम के बारे में बात करते हैं, and they're just done. वो 90 seconds खत्म. But you have to utilize these 90 seconds so effectively ताकि आप हमें अपना पूरा attire दिखाएं,
अपना makeup दिखाएं, your hair, your jewelry, everything is visible at least once, and then you talk about it in detail, because we want to understand that why you've chosen that specific makeup, why have you chosen that specific theme, right? It has to make sense. ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी से बहुत ज्यादा inspired हैं, maybe some personality, some politician, some actor, or you know, some other influencer for that matter. आप किसी को भी represent कर सकते हैं, but that has to be something that you believe in, right? Do not just go for anything. ठीक है, मैं ये कर लेती हूँ, बन जाती हूँ, because when you talk about it and you do not believe in it, that completely shows. So you have to give in your 100%. Your dress code has to be theme based. As it is mentioned here, your total score will be 10. You have to specifically and primarily mention that why have you opted this theme, and please try to cover everything up in 90 seconds, क्योंकि जैसे ही आपका time limit cross होता है, there is a negative marking that happens. और ये again सारे rounds के लिए applicable है. ये इसलिए होता है so that you know it completely shows how sincere and how serious you are for appearing on this platform. And let me just tell you, you are not there on just any other platform in this country. You are a part of the biggest platform of this country, the most unique community you're a part of. So first thing, you should be proud of yourself कि आप इतनी बड़ी community पे आज select होके audition देके participant बन चुके हैं, and there is every chance that you are going to represent your city at national level during the grand finale. राइट तो इसी सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है कि मैं 100% अपनी सिटी को रिप्रेजेंट करूंगी, एंड आई एम अ सेलिब्रिटी, राइट? इफ यू बिकम अ सिटी विनर फॉर फॉरएवर मिस और मिसेस इंडिया, देन यू आर ऑटोमेटिकली अ सेलिब्रिटी, क्योंकि आप आपकी जो सिटी की पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं जयपुर राजस्थान में in the biggest grand finale that's going to happen across the country. So take everything very seriously. I hope everyone has noted it down. The second round आपका मेकअप राउंड है, but each and everything is going to matter. Your confidence, the theme that you've chosen, why you've chosen that theme, and your overall attire, right? So we will be taking up questions towards the end, and now I would want Jaya to give you a brief about talent round 3, that is your ramp walk round. Thank you. Thank you so much, Kirti ma'am. So very good evening to you, all of you. You are looking really pretty. So जैसा कि आपको पता चल गया है, round 1 is all about your presence, your virtual presence, and round 2 is about your makeup. Round 3 is a mix of everything. Ramp walk, okay? So ramp walk, that is going to be a most glamorous round firstly, okay? Can you see the screen? Okay. So there is a time limit of 60 to 120 seconds. This is going to be like, अभी तक आपको 90 seconds में आपने prepare किया, right? First round में आपने 90 second की preparation की है, second में भी 90 की preparation की है. Third round it's going to be for 60 to 120 seconds. Okay? There are some key points जिसके basis पे आपकी marking होगी. Definitely first your ramp walk, second your footwear. Okay? So footwear, there is a specific kind of heels. We call it stilettos. जो आपको trainer आपकी training के time पे अच्छे से inform करेंगे. Okay, there is a certain heel inches of 3 to 5 inches, whatever you can carry basically. So अभी से ऐसा नहीं है आपको मैं कौन सा heel पहनूंगी, panic नहीं होना है. Okay, training मिलेगा, trainers आपको definitely they are going to guide you. It's just a brief idea about that. Okay. So footwear is a key thing, because definitely आपकी walk, and also one thing I would like to tell you, आप जो भी footwear choose करते हैं, please try and make sure कि आप उसमें comfortable हो. So I'll start, just start your practice early. No, just don't wait for round 3 to happen. Just start your practices very early so that you can be comfortable in your heels. Okay. Third is your attire. That is going to be a one-piece dress. And length could be definitely of your choice. So one piece, it could be a short dress, it could be a long dress also. But ramp walk में आपके basically leg movements वो हमको देखने हैं. So dress आप उस according choose कर सकते हैं. Like अगर आप long dress भी पहनते हैं, so there could be a slit. उस according आप choose कर सकते हैं अपना outfit.
Fourth, there is hairstyle. Definitely, because you're presenting yourself with a beautiful attire and with makeup on, with the accessories on, and definitely a hairstyle. So these are the 3 points जो आप round 1 and 2 में पहले से सीख के आ रहे हैं. You know, when you are there for your virtual presence, so आप अपना hairstyle, makeup, accessories ये सब पहले से set करके रखते हैं. But there has to be something, you know, grandeur about your ramp walk. So उस according आप ये सारी चीजें ready करके रखेंगे. Okay, and इसके लिए आपको एक म्यूजिक एफसीआई की तरफ से आएगा. देयर विल बी अ डॉक्यूमेंट फॉर्म ऑफ म्यूजिक जो 48 सेकेंड्स का होगा. उसी म्यूजिक पे आपको रैंप वॉक करना रहेगा. ओके, अगर आप प्रीवियस कुछ बैचेस के राउंड्स देखेंगे सो यू विल गेट द आइडिया. आप जितनी मिस्टेक्स अगर किसी ने करी है यू कैन कवर इट ऑल. ओके, फर्स्टली आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, आप पुराने जितने, ऐसा आपको वेट नहीं करना है that you know round 1 is done then only I'll think about round 1's previous sessions. No, just go through all the rounds. They are available on YouTube. Forever Star India आप search करेंगे, go to the video section and search all the rounds there. Okay, वहां से आप अच्छे से सीखिए कैसे लोगों ने प्रिपेयर किया, so that आप वो सेम मिस्टेक कभी रिपीट नहीं कर सको. You have this much of benefit. ठीक है. सेकेंडरी, आप जब जूम में आ रहे हैं, सो आई दीज आर सम पॉइंट जो मैंने अभी तक सेशंस में देखे थे. सो आप उस अकॉर्डिंग उनको नोट कर सकते हैं. जैसे कि आप आ रहे हैं 120 सेकेंड्स के लिए. सो इन स्टार्टिंग इफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, सो आप अपने बारे में यू कैन डिस्क्राइब एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द रैंप वॉक. एंड लोकेशन आपको देखनी है. किसी को लगता है कि मेरा स्पेस कम है, देयर इज अ ह्यूज स्पेस. कई लोगों ने you know they have went to their terrace, some people have went to highways also. So आप अपना लोकेशन पहले से स्पेसिफाई करके रखिए. ओके, एंड वंस यू कम ऑन जूम मीटिंग्स फॉर एनी राउंड, आप अपना जूम सेशन जो है यू नो द वर्चुअल प्रेजेंस आपकी जो है, कैमरा सेटल है, लाइट कैसी है, वो सब आप पहले से अपना प्रिपेयर करके रखिए. एंड व्हेन यू आर वॉकिंग, सो आपका वॉक आप पहले किसी और जूम सेशन से यू नो मीटिंग अटेंड कर सकते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में. एंड यू नो जस्ट सेट योर कैमरा अकॉर्डिंगली. ऑल्सो जब आपको म्यूजिक दिया जाएगा, सो दैट हैज टू बी यू नो सेटअप विद अ डिफरेंट डिवाइस. ओके, ताकि एंड में आप ये नहीं बोले हैरी प्लीज प्ले माय म्यूजिक. ओके, सो आप अपना म्यूजिक खुद ही प्ले करेंगे. आपको 48 सेकेंड्स का म्यूजिक मिलेगा. सो कंफ्यूज नहीं होना है. You know, you can repeat the music. We have some software and apps on Google, so you can rejoin the music and start with the 60 to 120 seconds. All right, I hope I'm much clear with the round 3, and if you have any queries we will take up on that. So over to you, Harry, now. Thank you everyone. Thank you, Jaya. Thank you so much. All right, so to calm down the panic, guys, you know, सबसे पहली चीज, आपके पास ये तीनों मौके होंगे. ओके, सो ऐसा नहीं है कि सबसे पहला सवाल मुझे यही आने वाला है कि अगर मैं पहले राउंड में मैंने थोड़ा बहुत मैसअप कर दिया तो क्या. नहीं, आप तीनों राउंड में परफॉर्म करेंगे. सो आपको तीनों राउंड्स की मेंटली तैयारी शुरू कर देनी है. अगर आपके पास बेनिफिट्स है पुराने वीडियोस का, तो ज्यूरी की एक्सपेक्टेशंस भी आपसे ज्यादा हैं. यू नो, जो सेकंड सीजन में, थर्ड सीजन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनके स्टैंडर्ड्स हायर एक्सपेक्ट किए जाते हैं. आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड दैट. So if you have the bigger benefit of checking the you know videos of previous rounds of previous batches, make sure you check them thoroughly. You know, क्योंकि किसी की गलती से सीखना is very easy, very very easy. You right away catch the fact that okay, this can be done. You know, this I can add to my own part as well. So be very very conscious of that. And जो अभी join कर रहे हैं and who have just joined, don't worry, the entire recording will be put up on YouTube. And I will also be taking up questions during the training session. So अगर talent round 2 होगा, उसके लिए एक makeup artist on board आएंगी. So for people who have had no experience in makeup या जिनको बिल्कुल भी idea नहीं है, there will be a makeup artist coming on board talking and giving you proper training of how to do your makeup at the basic level. Okay. Third talent round maybe there will be a ramp walk expert coming on board teaching you the right kind of ramp walk, because auditions के time पे जो हमने देखी थी वैसा नहीं चलेगा. You have to be professional, you have to learn and you have to work.
मैं हमेशा बोलती हूँ गिरना भी पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, and then you'll have to walk through. It's going to be a tough challenge, but it's going to be a fun one, because that is why you are here. You need to make every step count, every single training count. So now you need to understand that the talent round 3, you know, the तीनों talent round है, सबकी अपनी अपनी value है, सब में एक different चीज निकल के बाहर आनी चाहिए, and that is where you need to stand out. You know, when there are 35 people across the screen, 70 people across the screen, you need to ensure that you do something different. Okay, because see, is same level पे criteria चाहे same है सबके लिए, but सबका एक you know X factor होता है. Everybody has an X factor. Now coming to a very important point, language is not a barrier. प्लीज मेक श्योर कि आप जो दोनों यू नो नेशनली अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज हैं, हिंदी इंग्लिश, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसी में खुद को प्रेजेंट करें, एंड डू नॉट गेट कंफ्यूज एंड एंड अप यू नो आधा इंग्लिश में बोल के कोशिश करके स्ट्रगल करके कैन आई प्लीज टॉक इन हिंदी, दैट शोज लैक ऑफ प्रेपरेशन. हमने अगर ऑडिशन के टाइम पे वो चीज आपको अफेक्ट नहीं होने दी, तो आई डोंट थिंक यू नो आपको ये समझना चाहिए कि उस बेसिस पे आपको जज किया जाएगा. आई ऑलवेज से लैंग्वेज आपके सपनों के बीच नहीं आनी चाहिए, एंड इट डज नॉट डिफाइन योर पर्सनालिटी. वॉट एवर लैंग्वेज यू आर कंफर्टेबल इन, यू नो, अनफॉर्चुनेटली सारी जूरी मेंबर्स को पंजाबी गुजराती समझ नहीं आती है, तो रीजनल में हम नहीं जाते, बट जो दो बेसिक लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और हिंदी, हम उन्हीं में इस चीज को रखेंगे. बट यू हैव टू बी वेरी कंफर्टेबल, बिकॉज इवेंचुअली दैट विल डिफाइन योर कॉन्फिडेंस. The basic route to all these 3 talent rounds, ladies, is your confidence. क्योंकि ट्रस्ट मी, आप बेस्ट तैयारी करके भी बैठोगे ना, तब भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कोई टेक्निकल ग्लिच हो गया. आप डांस करने वाले हो, आपका म्यूजिक ही नहीं चल रहा है, आपका म्यूजिक सुनाई नहीं दे रहा है. Things are going to happen, you are going to have setbacks, but how you go through them, how you survive through them is what is going to make, you know, reflect your winner quality. So that confidence needs to be there. उससे पहले चाहे आप you know एकदम ऐसे बिखरे हो, लेकिन वो 90 सेकंड के लिए खुद को ऐसे गैदर करना है कि I have to put my best foot forward. Okay, so the nervousness needs to take the back seat, because there will be a proper training guiding session happening before each round. So हर एग्जाम से पहले कोचिंग भी हम ही देंगे और तैयारी भी हम ही करवाएंगे. Now of course we are open to taking questions. For that we will always follow one process, that is, put your name in the chat box. I will ask you to unmute and we will go one by one. Okay, so you can start putting your name. I will ask you to unmute, और ये हमेशा रेगुलर प्रोसेस ही रहेगा. That chat box is the first way to go. Do not unmute yourself unless asked to. Okay, so go ahead. If anybody has a question, you can just put your name. Lena, yes, hi Lena, how are you? I'm good. Yes, tell Am me. I audible? Yes, you are absolutely perfectly audible. Tell me. Yeah. Ma'am. Question related to first round, talent round. And if we want to perform on some Western song, so semi-formal costume will not going with the song, then how we can manage? See, that is when a good outfit makes an impression. Western song तो फिर बहुत easy हो गया ना. You can wear a dress also. A good dress will automatically look semi-formal. You need to see, semi-formal is a very inclusive term. Formal नहीं है. Semi-formal से क्या मतलब होता है? That a lot of things can be included, but you have to avoid casual. All right, like अगर मैं अभी बात करूं, so the kind of look अगर देखा जाए, Jaya has, can be semi-formal also, can be formal also. All right, it can go into both ways. But if you wear a classic good top or a classic good dress for that matter, so that you have to be conscious of कि आपकी choice जिस भी outfit में आप ले रहे हो वो कैसी है. And don't worry, an image consultant will be covering all these factors कि किस तरह का outfit आपको करना चाहिए. But you have to be comfortable while you are dancing. I understand that. So ऐसा नहीं है कि कोट पैंट पहन के बैठना है ना, वो formal हो जाता है. Semi formal means it has to be a leeway from formals, but it does not have to be casual. You cannot wear a t-shirt and come. You cannot wear anything like ganji for that matter and come. So that's the difference. You need to पर्टिकुलराइज व्हाट यू वांट टू वेयर, क्योंकि आई एम श्योर अगर ऑफलाइन होता तब भी आप अपने बेस्ट कपड़े पहन के आते, राइट? अगर हम डांस परफॉर्मेंस भी करते हैं तो हम अपने बेस्ट कपड़े पहन के करते हैं जब हमें पता होता है कि वो एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाने वाली है. सो मेक अ गुड चॉइस. आई एम श्योर इट वोंट बी दैट डिफिकल्ट. Okay, thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम. ईशा पुरस्वानी, हाय ईशा, या टेल मी प्लीज.
Isha, in case you're talking, you are on mute because I can't see you. Sorry, ma'am. Hi, Isha. Yes, Hi, ma'am. How are you? I am good. How are you? I'm great. Oh, wonderful. चलो बताओ. मैम टैलेंट राउंड में आपने बताया डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग, इसके अलावा क्या कुकिंग कर सकते हैं? कुकिंग आप 90 सेकंड्स में अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाओगे ईशा, जहां तक मुझे समझ आता है. आई डोंट थिंक 90 सेकंड में कुछ बनता है. मैगी भी नहीं बनती है, टू बी ऑनेस्ट. मैं बना लूंगी क्योंकि मेरे पास ऐसा कुछ है कि मैं अगर टैलेंट राउंड में आपके हिसाब से आता है तो आप बोलिए, नहीं तो फिर नहीं आता है ईशा. इट इज ऑब्वियसली अ टैलेंट. लेकिन अभी तक जो भी प्रेजेंटेशंस हुई है, यू कैन मे बी मेक समथिंग प्रायर to your talent round or prior to appearing for the talent round, and then you can present it beautifully. But if you feel कि आप 90 seconds में कुछ हमें वहीं पे करके दिखा सकते हो, that's that will be amazing. तो फिर आपको बहुत अच्छा स्कोर मिलने वाला है, right? Yes, ma'am. कर सकते हैं. If you can set your camera, imagine in the kitchen in the right way, like Sanjeev Kapoor does, and create an aesthetic environment, and talk about yourself and be a very good host to it. So 90 seconds are yours. मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे उसमें आप टेबल तोड़ो, कुर्सी तोड़ो, nobody will give, nobody will stop you. Those 90 seconds are yours, but you need to be very conscious कि आप present क्या कर रहे हो. Like I remember there was one participant जिन्होंने specially smoothies बना के रखी थी. She showed that she enjoys, making beverages. So she offered us. It looked very beautiful. So तो मैम मैं आपको बना के दिखाऊंगी. बना के दिखाओगे. Wonderful. Within 90 seconds. ठीक है, तो फिर मैं खाना खा के बैठूंगी ताकि मुझे भूख ना लगे, आपका वो देख. ठीक है, okay. So all right, I think next we have Pranjal. Hi Pranjal. Hello, hi everyone. Hi, yeah. So my question is also similar to hers. So I was just asking that the talent that we have to showcase, we have to prepare a video of it or we have to present it in front of the. आपको किसी भी राउंड में प्रांजल वीडियो नहीं बनानी है. In all the 3 rounds, everything is going to happen in the same manner, just like it's happening right now. जैसे आप अभी हमारे सामने लाइव बैठे हो, आप अपने बारे में बात कर रहे हो, क्वेश्चंस पूछ रहे हो, इन द सेम मैनर सब कुछ आप उसी टाइम करोगे. तभी हमने वो आपको 90 सेकंड्स का स्लॉट दिया है. उस 90 सेकंड्स में आपको इंस्टेंटली हमें सब कुछ करके दिखाना. चाहे वो मेकअप तो आप पहले से करके आओगे, लेकिन प्रेजेंट आप तब करोगे हमें, राइट? तो रिकॉर्डेड कुछ भी नहीं होगा. आपकी रैंप वॉक भी रिकॉर्डेड नहीं होगी, आपका टैलेंट भी रिकॉर्डेड नहीं होगा, राइट? ओके. And just to add, please do not put the talents into cliches. जरूरी नहीं है डांसिंग, सिंगिंग और यही सब टैलेंट नहीं होता है. People act also. They put forward anchoring. वो एंकर करना शुरू कर देते हैं. They are really good in speaking. So I remember a participant. She enjoyed traveling a lot. So she dressed up as one of her favorite states that she had visited, and she talked about how traveling makes her happy. So it's not just about showcasing your talent, but आप उसके बारे में कैसे बात करते हो. If you are into cooking, what cooking means for you, how does it make you happy? It should come out from the content that you are choosing. Your choice of words need to be very, very wise and very particular. So some people even showed their yoga. Some people are into yoga. They are yoga experts. वो लोग उनको professionally आता होता है. So they even showed us some yoga asanas, and some were into fitness. So talent could be anything. But you need to be sure that is it the right thing to display right now? Is it something that brings out the best in me? Because trust me, लगता है कि इतने से बॉक्स में क्या समझ आएगा, बट आपकी एक स्माइल और आपका एक जिटर, आपका एक नर्वसनेस सब दिख जाता है, सब समझ में आ जाता है. आई एम श्योर ऑडिशन में सबने ये चीज एक्सपीरियंस की है. आपके फेस से ही झलक में आ जाता है कि आप नर्वस हो, आप समझ नहीं आ रहा है या आपकी तैयारी में कमी है. एवरीथिंग शोज वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली. सो यू हैव टू बी श्योर कि वो 90 सेकंड मुझे कहाँ इन्वेस्ट करने हैं. ओके. So next we have Sakshi. Hi Sakshi. Hello, very good evening, ma'am. Good evening, Hanji. How are you? I am good. How are you? I'm good as well. Yeah. Ma'am, my question is कि in all the 3 rounds we have to showcase different talents. Yes. So first becomes your own talent, जिसमें क्या है? I feel first is the easiest round. उसमें अपने बारे में बात करना है, अपना टैलेंट है. सबका एक अलग अलग तरीका होगा. आपकी इंडिविजुअलिटी निकल के बाहर आएगी. पर बाकी 2 राउंड्स इतने डिफिकल्ट हैं because there is an open criteria.
कि कुछ भी कर सकते हो. So जब मेकअप राउंड की बात आती है, थीम की बात आती है, many people choose to represent a Bollywood character. अगर आपकी कोई favorite Bollywood character है, so कई लोगों ने some people choose Sushmita Sen from Kal Ho Na Ho, some people choose Geet from Jab We Met. So that is when you have to portray that makeup is not just a regular thing, it is something that holds value as an art form. Because I'm sure अगर मैं एक जो सबसे सब्सटैंशियल एग्जांपल हर ट्रेनिंग सेशन में टैलेंट राउंड 2 के ट्रेनिंग सेशन में देती हूँ, अगर आपने जब भी मैट देखी हो, सो वी सी 2 गीत्स, द फर्स्ट गीत इज द वन जो शुरू में होती है, the one who is very happy, जिसका makeup is very bright, she wears brighter colors, but the second geet is all into whites, light blues and all of that. So वो transition कैसे दिखता है without even her speaking, her makeup changes, her outfits changes, right? So वो क्या है, the presentation, the art form that takes the power, right? तो उसमें क्या है, बिना कुछ बोले ही आप समझ जाते हो कि मूवी का इमोशन चेंज हो गया है, the entire art form has changed. So that is where the power of presentation, the power of makeup comes into form as an art. So you need to understand that and present a theme. A theme could be something that is very close to your heart. Some people even talked about I feel domestic violence. Some people have even talked about rape through their faces. Some people have chosen to choose a very interesting topic of sun signs. So I remember one of them chose to represent, I think, Libra or something. So she painted her face with that chest thing wala cheez. So you can, so when there is no, क्योंकि क्या होता है, जब पता है ना ये करना है तो बहुत easy है. टैलेंट सबको पता है, आपके दिमाग में ऑलरेडी शुरू हो गया होगा कि मुझे टैलेंट में क्या करना है. पर जब ब्रैकेट हो जाता है कि कुछ भी कर सकते हो, the challenge becomes even tougher. You have to think out of the box. You have to make it count. So the other 2 rounds are going to be really, really difficult, and you have to make sure that you manage to stand out. Because trust me, people have used those 90 seconds very, very creatively. You can be as comfortable, but I'm sure आप लोग यहाँ पे comfortable होने नहीं आए हो. You want to grow. You want to take away from this journey. So do not worry. यहाँ पे आपके भाई बहन नहीं बैठे हैं. Nobody's going to laugh at you. They are only going to appreciate you for what you do, and the effort is going to count. Yes, ma'am. They are already appreciating that I got selected in the audition round. Ma'am, and one more question कि if I forgot कि मेरा 90 second over हो गया है, तो मतलब मुझे कैसे पता चलेगा? You said ना कि negative markings है. आपको पता नहीं चलेगा, मैं लेकिन आपके जितने भी 90 सेकंड, सपोज अगर किसी ने 120 ले लिया या 130 सेकंड्स हो गया, तो मैं बताऊंगी तो नहीं, पर मैं जूरी मेंबर्स को इन्फॉर्म करूंगी आपका राउंड कंप्लीट होने के बाद कि इस कैंडिडेट ने 30 सेकंड्स एक्सीड किया है या 40 सेकंड्स एक्सीड किया है. So there will be negative marking. Yes, so that is why you have to be prepared. Yeah, and one thing like what you can do, just prepare for particular 90 seconds only. Go in front of mirror and just speak about yourself and about your talent for 90 seconds. So you have to do it all about your preparation. Okay? Okay, thank you so much. Thank you. Most welcome. Sunita Sharma. Yes, Sunita. हेलो मैम. हाय सुनीता, हाँ जी बोलिए. मैम मेरा क्वेश्चन था, जैसे अभी आपने 3-4 डेज पहले जो लास्ट क्लास ली थी हमारी, और आज जैसे हमें लिंक मिला, कल और आज क्लास है, और जो ये आगे के 2 सेशन होंगे टैलेंट राउंड, अगर हमें 2-3 दिन ही मिलते हैं, तो आप हमें कितने टाइम पहले ये मैसेज सेंड करके इन्फॉर्म करेंगे कि हमारे पास इतना टाइम है अपने 90 सेकंड के लिए रेडी होने के लिए? सी इंफॉर्मेशन आ गई है. जो ट्रेनिंग सेशन होगा, सो हर ट्रेनिंग सेशन के बाद आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि मेरा 2 से 3 दिन के अंदर टैलेंट राउंड हो सकता है, ठीक है. लेकिन वी विल ट्राई कि हम जितनी जल्दी आपको टैलेंट राउंड के लिंक भेज सकें उतनी जल्दी हम आपको भेजें. बिकॉज क्या होता है, सी देयर आर 3 ज्यूरी मेंबर्स ऑन द बोर्ड, राइट. सो हर किसी से एक टाइम एलोकेट करना, एक टाइम फिक्स करना, ताकि आप लोगों की कन्वीनियंस में भी हो. बिकॉज अब कोविड तो खत्म, पीपल हैव स्टार्टेड बैक टू नॉर्मल, तो सब या तो काम कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं. तो आई एम श्योर आप भी 12-1 बजे तो दिन में फ्री नहीं होते हो. एवरीबडी इज either working, or even if you are a housemaker, you are involved in your domestic chores. So this time slot fits for everybody, right? The 5, 6, 7 p.m. for that matter. So it takes time to build up a space where everyone is available. So we will try our best. The team is trying really hard. Jaya tries her best to send the links as soon as possible. जैसे ही हमें confirmation आता है, हम सबसे पहले हरी करते हैं कि लिंक भेज दो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका राउंड कब है. So we'll be very conscious of that, and you will be informed at least 2 days prior for every training or talent round. Okay, thank you. Most welcome. Anuradha Tiwari. Yes, Anu.
ओके, इफ यू आर स्पीकिंग आप म्यूट पे हो क्योंकि मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है. I think she's left the meeting. Isha has Dimpy Jain. Yes, Dimpy. Hello, ma'am. Hi. How are you, ma'am? I am good. How are you? I'm fine. Thank you, ma'am. Yes. मैम सेम क्वेश्चन ही है बट थोड़ा सा डिफरेंट है. टैलेंट राउंड 1 आपने बोला 90 सेकेंड्स जिसमें इंट्रोडक्शन एंड आर टैलेंट बोथ आर इंक्लूडेड. यस. ठीक है मैम. तो मैम इंट्रोडक्शन और सपोज इफ वी आर डूइंग डांसिंग के साथ म्यूजिक भी होगा हमारा, उसको भी ऑन करना है, उसको भी स्टार्ट करना है, तो सारा 90 सेकेंड में आपको नहीं लगता कुछ कम होगा? ये टाइम हम लोगों के लिए बड़ा स्ट्रगलिंग नहीं हो जाएगा हमारे लिए? स्ट्रगल ही तो करोगे तभी तो जब विनर बनोगे तो बोलोगे कि अरे मैंने तो इतनी मेहनत करके इतना सब करके मैं जीती हूँ. पता है आपको मुझे क्या क्या करना पड़ा. जब मीडिया इंटरव्यू दोगे सेलिब्रिटी बन के तो जर्नी तो होनी चाहिए बताने के लिए. अगर सब कुछ इजी हो जाएगा तो फिर मजा क्या आएगा. बट हाँ, टू आंसर योर क्वेश्चन डिम्पी, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. एक बार लगता है बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, सी द मोमेंट यू कम, यू नो, ट्रस्ट मी, लाइक आई मेंशन्ड, देयर वाज अ पार्टिसिपेंट who showed 7 talents in those 90 seconds. Not even kidding. 7. मैम टैलेंट तो हो जाएगा बट इंट्रोडक्शन फिर छोटा हो जाएगा आई थिंक हमारा फिर सबका. कोई बात नहीं, छोटा रखो उसको, 30 का रखो, 60 सेकंड्स में अपना टैलेंट रखो, लेकिन उस इंट्रोडक्शन में आप क्या बोल रहे हो दैट नीड्स टू बी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वाइजली चोजन. आपके भाई बहन के बारे में बात नहीं करना है कि माय मम्मी इज माय इंस्पिरेशन, माय फादर इज माय, दैट इज डन. ऑल सब बता दिया आपने ऑडिशन में. आई नो वी लव योर, यू लव योर फैमिली एंड एवरीथिंग. दिस इज अबाउट यू. यू नीड टू चूज व्हाट इंफॉर्मेशन यू आर गिविंग. वी नो आपकी हाइट क्या है, वी नो आपका वेट क्या है, वी नो, यू नो, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. ये टेक्निकल डिटेल्स आपने फॉर्म में भर दी हैं, पर एक इंट्रोडक्शन. एंड फॉर दैट इफ यू विल सी सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, अगर आप इनके इंट्रोडक्शंस जाके देखोगे, मानुषी चिल्लर के, you will realize how smart their introductions are. You know, putting out the right content, the right information is very important, and that is where research comes in. आप लोग टेक्नोलॉजी वाले, you know, हम लोग के पास एक सबसे बड़ा बेनिफिट है टेक्नोलॉजी. Research endlessly. Watch out what are ways to give good introduction and make sure कि आपका इंट्रोडक्शन इतना सॉलिड हो कि आप 30 सेकंड में ही इतना अच्छा इंप्रेशन बना पाओ. So yeah, that you have to divide the ratio of course. And अगर डांसिंग की बात आई तो म्यूजिक के लिए अपने, you know, give your whatever family member is, उनको 50 या 100 रुपए का थोड़ा ब्राइब दो and ask them to play the music for you. मैम यही प्रॉब्लम है, फैमिली मेंबर ही नहीं है ना कोई So ask a friend to come over. It's going to be just one day का deal. Yeah. Okay ma'am, that I will do. I'll manage. Wonderful. See, that's the spirit. Liked it. Okay, let's move forward. Sashmita Das. Yes, Sashmita. Hi, Harry. Hi, how are you? I'm good. How are you? I am good too. Thank you for asking. Tell me. My question is already answered by you. I just want to know that how many days prior we'll come to know about that we have training and all. Okay, so trainings तो of course we will be informing you proper prior only, but we'll make sure कि talent round का तो proper आपको 2 दिन पहले कम से कम information आए ही आए. Training का हो सकता है कि 1 दिन पहले आए या 2 दिन पहले आए. But talent round के लिए preparation का you will have an idea, and don't worry, सबसे पहले training होगी. So talent round टेंशन अभी नहीं लेनी है, पहले सीखना भी तो है, content भी तो आए. अगर कोचिंग में सिलेबस, अभी तो सिर्फ सिलेबस पता चला है, लेकिन सिलेबस को पढ़ना भी तो है. बहुत कुछ बाकी है अभी. There's a lot that is pending. Don't worry about it. Okay, thank you. Most welcome. Sunita Sharma. Sunita, I hope I answered your question. Yeah, na? Okay. You don't have to double type your name. यार मेरे chat box में जाने में time लगता है, so don't worry. मैं किसी को, हम कहीं नहीं भाग रहे हैं, मैं और जगह यहीं बैठे हैं जब तक आपके आंसर नहीं हो रहे हैं. So Deboshri, yes Deboshri. Good evening, ma'am. Hi. Hi, how are you? I am good. How are you? I'm fine too. हाँ जी. So actually, I got my answer by Pranjal ji. Okay. आपने पहले ही बता दिया है उसका जवाब. मेरा भी सेम क्वेश्चन था कि वीडियो बनाना है या जूरी के सामने परफॉर्म करना है. नहीं, वीडियो तो इंस्टाग्राम पे बनाते हैं, ये तो पैजेंट है, इस पे तो लाइव ही कर सकते हैं ना. वही क्वेश्चन था. Thank you. ठीक है. So Janvi is next. Hi Janvi. Hello ma'am, how are you? I am good. आप कैसी हैं? मैं भी बढ़िया. मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि हम अपने कुछ टैलेंट्स अगर फोटो में क्लिक करके रखते हैं तो हम वो शो कर सकते हैं क्या? See, avoid doing that.
प्रॉब्लम कोई नहीं है कि अगर आपका पेंटिंग होती है या कोई ऐसा होता नहीं है। हम पेंटिंग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे कुछ फोटोग्राफी की स्किल हो या रंगोली हो, वो हमें क्लिक करके रखना आई पड़ेगा। अंडरस्टैंड। तो सी पुट इन दी एक्स्ट्रा एफर्ट। इमेजिन अगर आपने रंगोली बनाई हुई है, आप उसे अच्छे से दिखा दें लाइव, तो उसकी खूबसूरती देखिए क्या जाएगी, इंप्रेशन सोचिए क्या जाएगा। सो जो चीजें मैं वही बोल रही हूँ, अपने कंफर्ट स्पेस से बाहर निकलो। फोटो दिखाना बहुत इजी है, प्रॉब्लम कोई नहीं होगा, दिखा सकते हो। पर इमेजिन एक पार्टिसिपेंट ने अगर फोटो में अपना रंगोली दिखाया और एक ने ऑलरेडी बना हुआ दैट आई मेड दिस स्पेशली फॉर यू गाइज एंड लाइव दिखाया, इमेजिन मार्क्स स्कोर में कितना डिफरेंस होगा। आप समझ रहे हो? सो यू हैव टू बी कॉन्शियस कि आप अगर जो भी टैलेंट दिखा रहे हो उसको आप बेस्ट तरीके से कैसे दिखा सकते हो। फोटोग्राफी स्किल्स है, मेक श्योर यू गेट द प्रिंट आउट्स। इतना एफर्ट डाल दो कि प्रिंट आउट्स निकालो अच्छे से एक अच्छे पेपर पे, और फिर अपनी पिक्चर्स दिखाओ कि दीज आर माई पिक्चर्स, पुट देम ऑन अ वॉल, प्रेजेंट देम ब्यूटीफुली। सो एक प्रेजेंटेशन स्किल, जो उसमें क्राइटेरिया आपने पढ़ा था प्रेजेंटेशन स्किल और वर्चुअल अपीयरेंस का, वो यही सब चीजें हैं। टैलेंट तो आप सबके देखो लगभग सेम ही होने वाले हैं। आई एम श्योर अगर 70 लोग हैं, 35 तो आपसे में से डांस ही करने वाले हैं। लेकिन उस डांस को कौन कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उसका आपका चॉइस ऑफ आउटफिट क्या है, आपकी प्रेजेंटेशन सही है या नहीं, आपकी टाइमिंग क्या है, दीज आर द लिटिल डिटेल्स जो आपको एक एज देंगी। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. Leena, do you have another question or is it answered? Another question, ma'am. Okay, tell me. Sorry, ma'am. No Actually, I saw some videos which uploaded on YouTube recently. The contestants said they have prepared the costume. So we have to prepare our own costume, or how it is? कौन सा costume? Whatever they have weared in the talent round. तो वो तो टैलेंट हो गया ना। अगर आप अपना टैलेंट, अगर सी इफ आई एम अ फैशन डिजाइनर, तो मैं अपने टैलेंट को कैसे प्रेजेंट कर सकती हूँ दैट आई हैव क्रिएटेड दिस कॉस्ट्यूम फॉर माई सेल्फ। सो दैट इज समथिंग वेरी इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस। एंड ऐसा नहीं है कि because I think I remember who you are talking about. So this person made an outfit of newspapers, right? There, newspapers or something No, like that. I guess she's talking about Anjulika Patil because she is a fashion designer. Yeah. So there was one more person who has made, something very creative with newspapers and everything and all of that. So वो आपकी creativity है, उसको आप कैसे present करते हो, कैसे carry करते हो। Because see, काफी लोग बोलेंगे कि अगर पहले से चीज बना के रख रहे हैं तो वो तो कोई भी कर सकता है। But the way you talk about it, trust me, jury members इतने observant होते हैं, आपके confidence में फर्क आ जाता है। अगर आपने कोई चीज खुद करी होगी, आपके बात करने के तरीके से ही पता चल जाएगा कि this person is actually done it. I'm sure you would understand. ठीक है, जब हम अपने कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं और जब हम किसी के कपड़े मांग के पहन के बाहर निकलते हैं, दोनों के कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। I'm sure you would understand. So that these are little differences and little things that you understand. लेकिन वो जो इमेज कंसल्टेंट्स होंगे, जो ज्यूरी में होंगे, उनके लिए बहुत इजी होगा जज करना और पकड़ना कि this person is not doing something that she is confident in. So yeah, it's going to be a cumulative, and you can create an outfit if you are interested, but otherwise आपका outfit code तो बता ही दिया गया है। ठीक है? Thank you, ma'am. Most welcome. Yes, Neha Shinde. Hi, Neha. हेलो मैम, Hi. Good evening. हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, अगर योगा के टैलेंट ऑन में हमें योगा के बारे में बताना है या योगा करके दिखाना है, क्या कर सकते हैं इसमें? करके दिखाना है। योगा के बारे में विकिपीडिया थोड़ी खोलना है। नहीं, इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। अवॉइड गिविंग इन्फॉर्मेशन इन द टैलेंट राउंड प्लीज। सम पीपल डू दिस। वो लोग ना ऐसा अगर योगा के बारे में बता, योगा मेक्स यू फिटर एंड ऑल ऑफ दिस वी नो। यू नीड टू शो हाउ योगा मेक्स यू हैप्पी, व्हाट यू नो अबाउट योगा। सो यू हैव टू शो इट वेरी वेरी ब्यूटिफुली, ड्रेस इन अ वेरी अप्रोप्रिएट वे, ताकि आपका योगा का पार्ट भी अच्छे से हो जाए और आप खुद भी अच्छे लगो। सो इट कैन बी अ गुड मिक्स and avoid giving information. This is your talent round. It does not have to be a Wikipedia or a Google information. No, it needs to show what yoga means to you, how good you are at it. Because see, understand the difference between a hobby and a talent. Hobby is something that गाना मुझे अच्छा लगता है, पर अगर आपका गाना अच्छा है तो ही वो टैलेंट है, अदरवाइज गाते तो सभी हैं। ठीक है, तो टैलेंट और हॉबी में बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, वो आपको समझना बहुत जरूरी है।
और एक बात, इसमें ड्रेसअप तो टी शर्ट और पैंट वो पहन सकते हैं फिर, या फिर उसमें नहीं, अगर आप योगा में वो करना चाहते हो, यू कैन वेयर अ स्मार्ट जैकेट ऑल्सो, यू कैन वेयर, बिकॉज आई अंडरस्टैंड लेग्स पे थोड़ा कुछ फिटेड होना चाहिए, तभी आपकी लेग मूवमेंट क्लियरली दिखेंगी, बट यू कैन ड्रेस अप स्मार्ट इवन वाइल डूइंग योगा, ट्रस्ट मी. सो अपना थोड़ा दिमाग चलाइए, फिगर आउट व्हाट यू वांट टू डू एंड लुक अ सर्टेन वे. अगर आप प्रेजेंटेबल लगना चाहो तो आप योगा करते हुए भी प्रेजेंटेबल लग सकते हो. ठीक है? सो थैंक यू. मोस्ट वेलकम. Shreya Sakpal. Hi, Shreya. Hello, ma'am. Ma'am, actually, my question is, makeup now also includes face painting? Yeah, it can include face painting. People have done that. They have presented, there was one candidate who painted half her face as Radha, half her face as Krishna. So, yeah, because see, makeup round आप करके तो बैठ गए, पर उस 90 सेकंड में आप क्या बात करते हो, that is what is going to convey your individuality. बिकॉज अगर पहले वाले में 90 अगर आपको कम लग रहे हैं ना, तो दूसरे वाले में बहुत ज्यादा लगेंगे, बिकॉज 90 सेकंड्स बात क्या करें, अपने बारे में नहीं करनी है, पर what that theme means to you. It cannot be anything that you want to convey. The theme has to has a reason. वहाँ पे लिखा था, right? Why have you chosen that theme? So those 90 seconds need to be very valuably put out, because makeup करना तो है नहीं, करके बैठना है. So you have to show your outfit, show your makeup, but you have to at the end of the day answer the question कि ये theme मैंने क्यों choose किया? What does this mean personally to me? And does it bring my happy side out? Does it bring, a past trauma or anything that you want to convey for that matter? Or is it something that you personally resonate with? Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. Isha, do you still have a question? I think आपका नाम मैंने काफी बार पढ़ लिया है, so to avoid the confusion. Yeah, man, another question. Yes, Isha, tell me. मैम, मेकअप राउंड में अगर हम कोई कैरेक्टर लेते हैं और वो कैरेक्टर के क्लोथ्स काफी सिंपल है, तो पहन सकते हैं? पहन सकते हो, पर फिर उसमें आप बात क्या कर रहे हो, वो वैल्यू ले जाएगा. ठीक है? क्योंकि लाइक आई सेड 90 सेकंड्स आप ही पे फोकस होगा. तो अगर आपने कोई सिंपलर कैरेक्टर लिया है, अगर कोई यू हैव प्लेड इट वेरी सटल, बट आई वुड ऑलवेज से कि अगर मेकअप राउंड है, आप ग्लैमर इंडस्ट्री में जा रहे हो, मेकअप फुल रहेगा, बाकी जो कैरेक्टर दिखाना है उसका सिंपल है. नो इश्यूज. नो इश्यूज. एंड मैं कुकिंग में विदाउट फायर कर सकते हैं ना? No issues. Okay, thank you. Most welcome. Yes, Purvi. Hi, Purvi. Hi, ma'am. How are you? I am good. How are you? Yeah, tell me. I'm well, thank you. So I just had a very small question. So do we have any tentative dates decided on it? I'm just asking because maybe in the next week I'll be out of station, maybe traveling. So do we have any tentative dates for that? Okay, so not really. Next week से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है, but talent rounds के लिए अभी कुछ भी कमिट करना will be miscommunicating, and I do not want to do that. Because जब तक अब हमें कोई टेंटेटिव आइडिया नहीं है तो आपको दे दूं, तो फिर आप एक उम्मीद लगा के बैठ जाओगे, and then you will बगर जाया कि मैम टैलेंट राउंड था लेकिन आपने लिंक नहीं भेजा. So to avoid that, I will not give a date here. But to answer your question, one thing that all of you need to be very sensitive about, अगर आप कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर रहे हो, उसकी रिकॉर्डिंग YouTube पे जाएगी. So you do not have to worry. Okay? And दूसरी चीज, अगर आप किसी टैलेंट राउंड वाले दिन अवेलेबल नहीं हो, the only thing that you need to do is inform the team prior. जिस भी मैसेज से आपको लिंक आ रहा है, वहां पे बस इन्फॉर्म करना है कि आई विल नॉट बी अवेलेबल ऑन दिस डे. क्या आप मुझे इससे पहले या इससे बाद में कोई डेट दे सकते हो ताकि मैं अपना परफॉर्मेंस दे पाऊं. इंस्टेड ऑफ परफॉर्मिंग इन अ हरी, अवॉइड परफॉर्मिंग. दिस इज नॉट समथिंग दैट यू शुड टेक लाइटली. काफी लोग करते हैं कि अरे आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम ऑफिस एंड नाउ आई विल परफॉर्म. It shows that you are in a hurry, you want to complete it faster and you want to get done with it. But trust me, when you have invested so much time, you need to take these things seriously. Because see, अलग-अलग batches के rounds होते हैं. So अगर आप अपने batch में appear नहीं कर सकते, we will be more than happy to put you into a different batch. But आपका talent round complete करना जितनी हमारी जिम्मेदारी है, उतनी आपकी भी है. So take these things very responsibly. Okay? So no issues. अगर आप बाहर भी हुए तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा मौका नहीं मिलेगा, बट यू नीड टू बी इन टच विद द टीम टू इंटरैक्ट कि क्या मुझे इससे पहले या इससे बाद में परफॉर्म करने का मौका मिल सकता है ताकि मैं ये मिस आउट ना करूं. ओके, शाल्वी पठानिया. हाय शाल्वी. यस,
ऑल्सो काफी लोगों का माइक ऑन है, प्लीज अपने माइक म्यूट कीजिए, ये चीज मुझे बतानी नहीं चाहिए, आप लोग ट्रेनिंग सेशंस में हो, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू ऑल नीड टू बी ऑन म्यूट बाय डिफॉल्ट. ओके, शाल्वी, इफ यू आर ऑन मैम. हाय शाल्वी. हाँ जी. हेलो मैम. मैम मेरा क्वेश्चन था कि जैसे रैंप वॉक 48 सेकंड्स का जो मैम बता रहे थे, जैसे कि ऑटोमेटिक म्यूजिक आएगा, मतलब उसमें हमने खुद कोरियोग्राफ करना है कि हमने 48 सेकंड में उस म्यूजिक में कौन सा अटायर चूज करना है, और उसके बाद फिर म्यूजिक हम खुद मतलब उसके बाद हमें ब्रेक मिलेगा कि 48 सेकंड बाद इमीडिएट हमने खुद म्यूजिक ऑन करना है? नहीं, see, Jaya, will you answer that question? Yeah, not a problem. So, Shalvi, the thing is, आपको 48 seconds का जो म्यूजिक भेजा जाएगा, you can join the music twice. आप किसी भी ऐप से उसे 2 बार के लिए प्ले कर लीजिए और उसको 90 seconds तक के लिए प्रिपेयर करके रखिए कि हाँ सेम म्यूजिक अगर रिपीट हो जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, आपने स्टार्ट किया है वही म्यूजिक रिपीट हो जाएगा आपके लिए, और आप किसी और डिवाइस से वो म्यूजिक प्ले करेंगे, राइट? ओके, यस, लाइक दैट. एनीथिंग एल्स? नो मैम, बाकी वो 160 सेकंड्स के लिए हमने वो खुद कोरियोग्राफ करना है कि नॉट 160 सेकंड, इट्स 90 to 120 सेकंड्स. सो अभी आपने राउंड 1 and 2 में इतना प्रिपरेशन कर लिया कि 90 सेकंड्स का आइडिया है आपको. 120 सेकंड्स आपको इसलिए दिए जा रहे हैं तो स्टार्टिंग में आप अपना सेटअप भी कर सकते हैं. कई लोग स्टार्टिंग में सेटअप कर सकते हैं, कई लोगों को दे आर ऑलरेडी सेट विद देयर कैमरास, देयर लाइटिंग एंड एवरीथिंग, तो वो अपने बारे में बात कर सकते हैं. ओके, मतलब 90 सेकंड्स में ऐसा नहीं है कि सिर्फ वॉक ही शो करनी है, हम थोड़ा यस, हाँ, यू कैन टेल अबाउट योरसेल्फ, शो योर आउटफिट, बिकॉज़ यू आर लुकिंग सो ग्लैमरस. ओके, सो आप अपना मेकअप, क्या हेयर स्टाइल किया है, कैसे प्रिपेयर किया है, वो सब आप उसके बारे में बात कर सकते हैं. देन यू कैन प्ले योर म्यूजिक एंड स्टार्ट विद द रैप. और मैं म्यूजिकल हमने दूसरे उस पे लेना है. यस मैम, इस चीज को मैं यही आंसर कर देती हूँ. सो टैलेंट राउंड 3 बहुत आगे है, बहुत आगे. उसकी टेंशन अभी नहीं, ठीक है? ओनली टेंशन दैट यू नीड टू टेक इज walk in your heels, start walking in your heels, guys. Yes. किचन जा रहे हो, हील में जाओ. अगर लॉबी में घूम रहे हो, हील्स में घूमो. That round is going to be the most crucial round because आप लोग यहाँ पे मॉडल्स बनने के लिए आए हो. आपका फाइनल डेस्टिनेशन is going to be walking down the ramp. आप विनर बनते हो सिटी लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे. You are going to walk in those heels, right? So start walking in heels. The only reason of giving out the information prior of all 3 rounds is ताकि आपको एक gist में आइडिया लगे. I will be again disclosing the information during the training sessions, but you need to be prepared. So उस talent round 3 के बारे में जो भी information दिया उससे एक चीज से सिर्फ डरना शुरू करो, वो है heels, वो भी pencil heels. Stilettos is equal to pencil heels only. So wedges छोड़ दो, blocks छोड़ दो, जो भी अब तक comfort zone में घूम रहे थे सब छोड़ दो. अभी कोई बहाना नहीं चलेगा. जैसे कि मैंने कहा, किचन में जा रहे हो, लॉबी में घूम रहे हो, heels में घूमो. Trust me, it's going to help you a lot and it's going to show. आपका confidence automatically fluctuate हो जाएगा. And this is not something, हम कोई बदला नहीं ले रहे हैं आपको बोल के कि pencil heels में घूमो, but professionals बोलते हैं कि जो ramp walk होती है वो सबसे perfect तभी निकल के आती है जब आप stilettos में walk करते हो. Wedges और blocks में आपकी ramp walk हमेशा थोड़ी altered और कहीं ना कहीं गड़बड़ रहेगी ही रहेगी because आपका posture incorrect होता है. ठीक है? So शाल्वी आप म्यूट पे हो. हाँ जी, बोलिए. सॉरी मैम, एक्चुअली मुझे पूछना था कि वैसे मैम ने वो ऑलरेडी, एक मैम थे उन्होंने पूछ लिया है वो क्वेश्चन, बट स्टिल थोड़ा सा था कि जैसे आफ्टर 19 मतलब आफ्टर 19 अक्टूबर मैं मतलब 10 डेज के लिए शायद आउट ऑफ स्टेशन ही होंगे, तो उन 10 डेज के बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट सेशंस होंगे हमारे, या उसके बाद मैं कर सकती हूँ, या फिर वो हो चुके होंगे? मतलब ट्रेनिंग सेशन सी दोबारा बहुत कम होते हैं, ठीक है? तो उसके लिए मैं आपको कोई झूठा वो नहीं करना चाहती कि आपको ट्रेनिंग दोबारा मिल जाएगी. रिकॉर्डिंग होती है हर सेशन की, ठीक है? तो रिकॉर्डिंग आप कभी भी देख सकते हो. दैट इज ऑलवेज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. Having said that, talent rounds को थोड़ा seriously ले. Even if you are outside, you can manage a 1 hour or a 2 hours for that talent round. So think very wisely. ऐसा नहीं है कि बाहर आपका नेटवर्क नहीं है. इंडिया अब तो गाँव में भी नेटवर्क आता है. So it's not that issue, right? So manage your time, take a separate room, sit for it, prepare, and then perform for it. Not an issue. And अगर by chance नहीं भी कर पा रहे हो, तो ask the team कि इसके अलावा कौन सी dates available हैं मैं talent round दे सकती हूँ.
सो इट्स गोना बी अ टीम वर्क. ऐसा नहीं है कि आप खुद के दिमाग में सोच के बैठ जाओ कि मैं बाद में दे दूंगी, पर बाद में अगर हो ही ना तो फिर उसकी जिम्मेदारी कोई ले नहीं सकता है ना. यू नीड टू बी कॉन्शियस कि इसके अलावा क्या डेट्स अवेलेबल है, आप मुझे उस डेट में डाल दीजिए. ओके, वंडरफुल. यस कृतिका, यू हैव अ क्वेश्चन. Yes, ma'am. Hi. Hello, ma'am. Good evening. Good evening. हाँ जी. You have already answered my question multiple times, but I need little more clarity on that. Yeah. I need about the process, how it goes. Like after the training session of talent round 1, we have to perform, then 2, then perform. Is it like that, or after all the 3 sessions we have? See, it might be a mix. So next week आपकी 2 trainings तो schedule हो ही रही हैं. सबसे पहले तो training 2 जो कि मेकअप आर्टिस्ट के साथ है, और ट्रेनिंग 1 जो कि इमेज कंसल्टेंट के साथ है. आई नो काफी लोग यहाँ पे बैच क्यू से भी हैं जिनकी ट्रेनिंग और टैलेंट राउंड 1 ऑलरेडी हो चुका है. सो डू नॉट गेट कंफ्यूज, री-एम्फसाइजिंग इट अगेन. बट बैच आर और एस, सो मैं बैच आर और एस को, मैंने क्यू को तो ऑलरेडी बोल ही दिया था, बट आर और एस को बोलना चाहूंगी. 2 चीजों का आप लोगों को खास ख्याल रखना है, एंड फॉर एवरीबडी. एक तो अपना बैच याद कर लीजिए, आप कौन से बैच से हैं. डू नॉट गेट कंफ्यूज. आपका लिंक आता है, उस पर क्लियरली लिखा होता है बैच आर, बैच एस. नहीं भी पता है तो अब आएगा तो आपको क्लैरिटी मिल जाएगा. ठीक है, आस्क द वन हु सेंडिंग द लिंक इमीडिएटली कि मेरा बैच कौन सा है. दूसरी चीज, लिंक्स को बहुत कॉन्शियसली देखना है. उस लिंक पे, आज भी आपके पास लिंक आया था, उस पर टाइटल लिखा होता है, टाइम लिखा होता है, डेट लिखा होता है. कई बार क्या होगा, हो सकता है 2 लिंक्स एक साथ आए, तो उसमें क्या होता है, पीपल एंड अप सेइंग कि अरे मैम हमारे पास तो एक ही लिंक आया था, बट क्या होता है वो 2 एक साथ आ जाते हैं. सो यू एंड अप मिसिंग ऑन टू इट. तो उसको तो हाई अलर्ट पे डाल दो. ये जो नंबर से लिंक्स आ रहे हैं ना, उसको तो ऐसे मतलब रोज, चाहे ना भी आ रहा हो तो भी देख लो कि कोई मिस तो नहीं हो गया. बिकॉज दीज आर सम थिंग्स दैट यू नीड टू बी रिस्पॉन्सिबली टेकिंग केयर ऑफ. हमारी टीम से हमारी जिम्मेदारी लिंक भेजने के बाद खत्म हो जाती है. ठीक है, सो एट द एंड इफ यू आर मिसिंग आउट, यू नीड टू बी कॉन्शियस. बिकॉज आई एम श्योर अगर आपका ऑफिस होता, अगर आपकी कॉलेज होता, तो भी आप इन चीजों को, नोटिस बोर्ड को हम हमेशा 2 बार पढ़ के आते हैं, ताकि नोट ना हो जाए. So take these things also very, very seriously and be conscious of what you are doing there. Okay? Yeah, sure. Thank you. Most welcome. Yes, Neha Yadav. Yes, Neha. Good evening, ma'am. How are you? Neha, I am good. How are you? I'm fine, ma'am. Ma'am, I want to ask कि ये जो talent round 1 होगा, उसमें हम different talent, जैसे कि basically तो dancing perform करेंगे, but अगर उससे ज्यादा अगर हमारे पास टैलेंट है तो हम उसको भी शोकास्ट कर सकते हैं. Yes. 90 सेकंड मैंने कहा, आप कुछ मर्जी करो, मैं नहीं रोकूंगी. मैं तो उसके बाद भी वैसे नहीं रोकूंगी, बट मैं ड्यूरी मेंबर्स को जरूर सलाइली इन्फॉर्म कर दूंगी कि आपने टाइम एक्सीड किया है. बट वो 90 सेकंड्स आपके हैं, आप उसमें चाहे नाचो, गाओ, चाहे जो मर्जी करो, वो आपके टाइम है. I'll take care of time. उसके लिए प्रैक्टिस की जरूरत होगी, that's for sure. और सेकंड क्वेश्चन मैम मेरा ये है कि मेकअप जो होगा, मेकअप राउंड, उसमें हमें मतलब पहले से ही मेकअप करके बैठना है एंड मेकअप को एक्सप्लेन करना है, मतलब व्हाई वी हैव चूज दिस, और एट द सेम टाइम वी हैव टू डू द मेकअप. नहीं 90 सेकंड में कहाँ से मेकअप होगा. काजल नहीं लगता मेरे से, आईलाइनर नहीं लगता 90 सेकंड में. यार क्या बात कर रहे हो. नहीं 90 सेकंड में मेकअप नहीं करना है, बैठ करके बैठना है. लेकिन जैसे कि मैंने कहा, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन में और सेंसिबल इन्फॉर्मेशन में फर्क होता है. इफ यू स्टार्ट गिविंग इन्फॉर्मेशन, मैंने फाउंडेशन लगाया है, मैंने ब्लश लगाया है, मैंने ये लगाया है, 90 सेकंड वहीं पे खल्लास हो जाएंगे. ट्रस्ट मी, यू हैव टू बी कॉन्शियस. मैंने जैसे कि बोला, आप थीम चूज कर रहे हो, आप एक रीजन की वजह से मेकअप कर रहे हो कि मुझे ये थीम करना है, इसलिए मैं ऐसा मेकअप कर रही हूँ. इफ यू वांट टू कन्वे अ डार्क थीम, से हैलोवीन फॉर दैट मैटर, जैसे कि हैलोवीन करना है तो आप डार्क थीम मेकअप करोगे. सो उसके बारे में जो बात करना है, दैट इज व्हाट काउंट्स. और मैम उससे रिलेटेड ही मतलब हमें आउटफिट पहनना है अपना, मतलब मेकअप से रिलेटेड. Yes, absolutely. I'm sure अगर आप बोल्ड मेकअप करके नीचे अगर आप बिल्कुल ऐसा टी-शर्ट पजामा पहन के बैठोगे तो वो अच्छा तो लगेगा ही नहीं. तो आपको सारा दिखाना है. So it has to be coherence. It has to be the total outfit that counts. It will be like fancy dress. जैसे कि yes, लेकिन बड़ों का फैंसी ड्रेस. Exactly, you got my point. Yeah, बिल्कुल. That is the right term for it. फैंसी ड्रेस ही है एकदम ऐसा. तो ऐसा बच्चों से इंस्पिरेशन लेना, जो भी आपके आसपास है उनसे पूछो कि बेटा तुम क्या बन के गए थे, तो ऐसा ऐसा करके उनसे सीख लेना. ठीक है, नो इश्यूज. थैंक यू. Okay, so yes, next we have Ritu. Hi Ritu. Hi there. How are you doing, ma'am?
I am good. How are you? I am growing. रितु, आई थिंक आपका नेटवर्क बफर हो रहा है. Am I audible, ma'am? आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है, but I'll try. So, am I audible now? Go ahead. Okay. So I said I'm alive and growing. Wonderful. I had two questions, but one was already. Yeah, Jaya ji. The next question is, the second question is about talent round 2. So my question is, it's a makeup round. So is it a marking depends upon makeup plus dress, or makeup will be take the most part of marking? Makeup will take the more part, not most but more. So ratio of course stronger makeup का होगा. But I'm sure यार, बहुत टाइम हो गया, 1.5 साल से अंदर ही बैठे हैं. अपने बेस्ट कपड़े निकालो, ट्रेनिंग में भी अच्छे से तैयार होके बैठो, टैलेंट राउंड में भी अच्छे से तैयार होके बैठो, कहीं नहीं जाना फिर भी घर पे अच्छे से तैयार होके बैठो. बेस्ट मौका है. तो जो भी कपड़े आप अदरवाइज नहीं पहनते थे, और जब भी तैयार होके बैठो, मस्त सा फोटोशूट करवाओ. सो कोविड में अंदर बैठ के सबको परेशान हो चुके हैं. सबके कपड़े अंदर पड़े एकदम पक चुके हैं. सो टेक दोस क्लोथ्स आउट, लुक वेरी ब्यूटीफुल एंड वेयर योर बेस्ट ड्रेसेस. Yeah, and क्योंकि आपका जो थीम है, like टू आंसर योर क्वेश्चन मोर प्रिसाइजली रितु, आपका थीम सिर्फ आपकी मेकअप से ही नहीं, आपकी आउटफिट से भी रिफ्लेक्ट होगा. अगर आप मेकअप एक टाइप का करके बैठे हो, पर आपकी आउटफिट आपकी थीम को कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है. जैसे काफी लोगों ने रीजनल कल्चर्स रिप्रेजेंट किए थे. काफी लोग सम बिकेम द पंजाबी कुड़ी, सम रिप्रेजेंटेड राजस्थान, सम रिप्रेजेंटेड गुजरात. तो उन्होंने आउटफिट्स भी वैसे पहने थे. जैसे अभी नेहा ने बोला, तो फैंसी ड्रेस में अगर आप राजस्थान रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो यू हैव टू वेयर द राजस्थानी आउटफिट. सो योर आउटफिट नीड्स टू बी इनटू द कोहेरेंस ऑफ योर मेकअप. क्योंकि अगर टी शर्ट पजामा में और मैं जीन्स टॉप में पंजाब रिप्रेजेंट नहीं कर सकती हूँ. आई हैव टू वेयर अ सूट फॉर इट. आई हैव टू वेयर अ फुलकारी, और आई हैव टू डू अ परांदा एंड ऑल ऑफ दैट. सो द आउटफिट आल्सो मैटर्स. Okay, ma'am. And one last question, that is, if we have chosen a theme, like theme should be related to any story also. It can be, but the way you talk about it is, like I said, gonna take the cake away. Do not miss out कि आप सिर्फ मेकअप पे ही फोकस करके, आउटफिट पे ही फोकस करके आप तैयारी करके बैठे हो. You are looking the best, but while you speak, आपके पास it is not making any sense. Those 90 seconds are crucial, because अगर आप मेकअप करके बैठ रहे हो, आपको ये सोचना है कि अब मैंने कर तो लिया, पर मुझे बोलना क्या है, ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्यों था, मेरे दिमाग में यही थीम क्यों आया चूज करने के लिए. ठीक है. So you can think out of the box, but you have to convey it also. Communication is what is very important, because वो आप अपने बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हो, अपनी थीम के बारे में रिफ्लेक्ट कर रहे हो. You can look really stunning, but eventually if those 90 seconds are not used wisely, the whole performance will fall flat. Thank you so much. Most welcome. Yes, Nisha Yadav. Yes, Nisha. Hello, good evening, ma'am. Good evening, Nisha. Yes, tell me, please. I have a very small query. Actually, I don't know anything about makeup. The only makeup thing I know is lipstick. I put on my lipstick and nothing else, not even eyeliner. So how will I do this round? Okay. So जो makeup artist आएंगी, वो base से makeup सिखाएंगी. The basic beginner level. So she does not expect any of you to know makeup. अगर आपको basic skincare भी नहीं पता है जो makeup से पहले करना होता है, वो भी cover करेंगी. Don't worry. She will suggest you products also जो कि budget में होंगे. Everything. So don't worry about it. Tension नहीं लेना है. And I'm sure उसके अलावा भी यार makeup की तो 1000 videos है. Instagram भरा हुआ है. जितना मर्जी tutorial देख के सीख सकते हो. तो कोशिश करना शुरू करो. एक बार लाइनर इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, पर तीसरी बार में सीधा लग जाएगा. Okay. Thank you. That's all. Most welcome. Yes, Meghna. हेलो मैम. हाय. हाँ जी. वीडियो आपकी दिख गई. ओके. मेरा क्वेश्चन है, आपने मैम जो फर्स्ट राउंड के बारे में बताया था, उसमें 4th पॉइंट था कि वॉइस मॉड्यूलेशन एंड इंटोनेशन था. तो मैम वॉइस मॉड्यूलेशन तो समझ आया कि हाँ आपको वॉइस प्रॉपर रखना है, बट इंटोनेशन के बारे में मुझे पूछना था. इंटोनेशन पिच होती है.
तो आप अगर अगर मैं बात करूं कि तो फिर मेघना आप ऐसे कर लीजिएगा कि ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे से ऐसे हो जाएगा, तो आप वहीं पे डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. यू विल नॉट हियर व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट? सो द इंटोनेशन इज द पिच ऑफ योर वॉइस. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रिफ्लेक्ट कॉन्फिडेंस. अब अंदर से चाहे मैं कितनी नर्वस हूँ, मैं और जया कितने ही नर्वस है, पर वी हैव टू टॉक विद कॉन्फिडेंस टू यू गाइस. तभी आप लोग हमें सुनोगे, हमें सीरियसली लोगे, राइट? So you Yes. have to make sure that your voice intonation, and don't worry, ये details जो image consultant आपको train करेंगे वो अच्छे से cover करेंगे कि कैसे आपकी voice intonation आपकी performance को affect करती है. Because अगर आप बोलते हुए कर रहे हो ऐसे, so I was thinking अगर ऐसे voice आपका break हो रहा है या आप बहुत सोच के बात कर रहे हो, there are jitters coming in between, it shows A, lack of confidence, B, lack of preparation. So yes, and voice intonation से एक और चीज आती है, प्लीज अवॉइड रीडिंग फ्रॉम एनीवेयर. काफी लोग ये करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करके ना सामने रख देते हैं एंड देन दे आर लाइक रीडिंग. ट्रस्ट मी, अब पता चल जाता है. मैं ज्यूरी नहीं हूँ बट मुझे भी पता चल जाता है. नॉट इवन किडिंग. सो इट शोज अवॉइड डूइंग दैट व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट योरसेल्फ. दैट इज द मोस्ट कंफर्टेबल थिंग टू डू एवर. आप एक बार ऑलरेडी कर चुके हो ऑडिशंस में एंड इसीलिए आप सिलेक्ट हुए थे, बिकॉज वी लाइक योर पैशन, योर zeal to talk about yourself. But now it needs to be done in a more polished way, and that shouldn't be something that you should be scared of. ओके और मैम सेकंड क्वेश्चन ये कि जैसे कि टैलेंट राउंड 2 में हम लोग राजस्थानी, पंजाबी या फिर कुछ भी मेकअप थीम रखते हैं, तो हम लोगों को उस कल्चर पे बेस्ड ही बात करनी है या फिर मेकअप से रिलेटेड ज्यादा बात करनी है? क्योंकि मेकअप से तो मैम हम लोग जैसे राजस्थानी करेंगे तो हम लोग मेकअप तो वही नॉर्मल होगा, बट वो है कि जो एसेसरीज होगी वो हमारी शो करेगी. तो हम लोगों को मतलब उस कल्चर के अकॉर्डिंग बात करनी है, मेकअप से रिलेटेड बात करनी है. कि अगर आप राजस्थानी लुक को ना बहुत डिटेल में सर्च करोगे, हर लुक का एक स्पेसिफिक फीचर होता है. बंगाली पीपल हैव अ वेरी प्रिटी आई मेकअप, दे डू. यस, एंड बिंदी, लॉन्ग बिंदी आल्सो. Exactly. तो ये छोटी छोटी डिटेल्स मैटर करती हैं. एंड हैविंग सेड दैट, आप एक बार अपना क्वेश्चन शुरू से रिपीट करेंगे? मैं स्टार्टिंग का पार्ट भूल गई, क्या बोल रहे थे आप? मैं ऐसे कह रही हूँ जैसे कि कई लोग मान लो पंजाबी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या फिर कई रिप्रेजेंट करना चाहते हैं राजस्थानी को, तो उनको मेकअप के बेस पे ज्यादा बात करनी है, फिर उनको कल्चर से बात करनी कि हमने ये कल्चर क्यों चूज किया है. हाँ, क्यों कल्चर के बारे में नहीं, मतलब ऐसा नहीं बताना है कि राजस्थानी कल्चर 1960 से शुरू हुआ था और ये ऐसे है. वो गूगल इंफॉर्मेशन है, वो नहीं देनी है. यू हैव टू बी वाइज कि आप क्यों का आंसर कर रहे हो, कि मेरे लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है, मैं इसको क्यों एंजॉय करती हूँ. एंड ऑफ कोर्स अगर आप राजस्थानी कल्चर डांस कर रहे हो तो आप थोड़ा सा डांस परफॉर्मेंस भी दे सकते हो रिलेटेड टू दैट कल्चर, ताकि आपकी परफॉर्मेंस भी दिखे एंड इट शोज दैट यू हैव वर्कड रियली हार्ड. सो अगर आप कोई कल्चर रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसकी की फीचर्स रिसर्च करो, ठीक है, रादर देन गिविंग आउट गूगल इन्फॉर्मेशन कि इस कल्चर में ये पॉपुलर है, वो सब हमें पता है, वो तो गूगल भी बता देगा. बट आपका टैलेंट राउंड है, आपके 90 सेकंड्स हैं, आपकी खासियत बाहर निकल के आनी चाहिए. तो उसको किस तरीके से निकालना है वो आप पे डिपेंड करता है. ओके मैम, थैंक यू फॉर द आंसर्स. मोस्ट वेलकम. आयशी भट्टाचार्य. हाय आयशी. हाँ जी. हेलो मैम, गुड इवनिंग. Am I visible? Yes. डिम्पी एंड नवीता, आप लोग अभी भी म्यूट पे नहीं हो. जस्ट टू रीएम्फसाइज, प्लीज अपने आप को म्यूट कर लीजिए. एंड यस, ओके आयशी, हाँ जी बोलिए, आप ऑडिबल हो. Okay, ma'am. First of all, ma'am, good evening. And I was actually wanting to ask about the Instagram stories. Like I saw a lot of participants appearing on the FCR stories, and that their videos and video contest or something like that was going on. They were like winners, and so I wanted to ask, how do we appear for that? So that contest is done and dusted. उसके awards भी हमने winner भी announce कर दिए थे, क्योंकि वो previous batches थे जिन लोगों ने शुरू से enroll किया था. आपके लिए भी आगे contests आएंगे, so don't worry. जो भी आपके अंदर that excitement है उसको थोड़ा सा hold करके रखो, and there will be some very beautiful contests coming up on board. But yeah, see the point is ये समझना जरूरी है कि आप लोग later batches हो, तो आपके लिए इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन एक बार को देख के डरना नहीं है कि अरे ये तो सब इनका हो गया, हमारा तो हुआ नहीं है. बिकॉज यूट्यूब पे अब तक अगर आप QRS हो तो आप सोचो A to P तो अभी हो चुके हैं, तो उनके वीडियोस ऑलरेडी अप हैं, ठीक है. सो डू नॉट गेट वरीड कि अरे मेरा तो ये हुआ नहीं, कहीं मैं मिस आउट तो नहीं कर रही. नहीं, आपका बैच अलग है, उनका बैच अलग है. हम हर चीज में बैच वाइज जाते हैं. लाइक आई एम श्योर अब सबसे पहले आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, पता नहीं मेरा सैश कब आएगा, मेरा सर्टिफिकेट कब आएगा, व्हेन विल आई गेट इट. बट इट्स ऑल गोइंग ग्रेजुअली, इट्स गोना हैपन बैच वाइज, एवरीथिंग इज गोना हैपन बैच वाइज. आप लोगों को ही देना है. अब जैसे आयशी भट्टाचार्य का सर्टिफिकेट मैं और जया लेके तो क्या ही करेंगे, नाम तो उस पर आप ही का लिखा है.
तो वो आप ही के पास आएगा, है ना? Okay, ma'am. Thank you. One more thing I would like to say, अगर आपको लगता है, you know, you're so excited about showing your talent, do make your reels on Instagram. आप अपनी daily activities Instagram पे कीजिए. Even if you are, you know, starting your trainings, तो आप ramp walk कर रहे तो ramp walk की, because I've seen some of the contestants even from this batch, they have started their ramp walk trainings and they are making the videos and they are tagging FCR. So this is how you can, you know, represent. सबको पहले से पता चल रहा that you are getting ready. So yeah, उसके लिए Instagram ने उसके लिए बड़ी मस्त फीचर लॉन्च की हुई है, tag the people in your story. So tag FCR forever and your story will also get reposted and it will be noticed. But having said that, I know most of you have private accounts. So अगर आप private account पे FCR को tag करोगे तो please don't say कि हमारी story repost क्यों नहीं हुई, because private account से story repost नहीं होती है. आपकी account public होगा तभी वो story repost होगी, because FCR is not following you, right? So understand the algorithm. Do not get confused. Okay? Thank you, ma'am. Thank you, hi, ma'am. Most welcome. Yes, Lena, you have one more question, my dear. How many questions do you have? Tell me. No, ma'am, I haven't. आपने लिखा हुआ है, I have one more question. No, that was done. Okay. I think this chat box is showing later. तो वो लेटर में तो मैं आ तो रही हूँ धीरे धीरे, तो ऐसे दोबारा मैसेज करने की जरूरत नहीं होती, मैं किसी को छोड़ के नहीं जाऊंगी, सबके सवालों का जवाब दूंगी. Okay, no questions. Priya has asked what points need to be mentioned while talking about makeup. Is it like how we've done our makeup or something? So Priya, it needs to be a very calculative decision. For the last time I'm answering this question, guys. जो makeup का 90 seconds का content है, वो बहुत ही smartly आप choose करोगे कि उसमें आप कितना रेशो किसका डाल रहे हो. ठीक है, रेफरेंस के लिए जैसे कि मैंने कहा, पुराने वीडियोस देखो, जो पिछले बैचेस के टैलेंट राउंड 2 हैं, उनकी वीडियोस देखिए, उन्होंने कैसे कैसे बात करी है. ठीक है, एंड इट डज नॉट नीड टू बी टेक्निकल. जैसे कि मैंने कहा, इंफॉर्मेशन देने में और दिल से किसी चीज के बारे में बात करने में बहुत फर्क होता है. इफ यू विल स्टार्ट लाइक, ओ आई हैव अप्लाइड दिस फाउंडेशन, आई हैव अप्लाइड अ मस्कारा एंड आई हैव अप्लाइड दिस, इट विल साउंड वेरी टेक्निकल एंड इमीडिएटली द जूरी विल स्नैप आउट. यू नो, आप जब तक आपकी इंफॉर्मेशन, आपका जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा, यू नो, कनेक्ट नहीं बनेगा, आप लोग भी, यू नो, सी इफ मैं और जया अगर ऐसे बात करने लग जाएं 90 सेकंड्स सेमी फॉर्मल, यू नो, एंड वॉइस इंटोनेशन मॉड्यूलेशन, तो वो टेक्निकल हो जाएगा, आप लोग सुन के ही बोर हो जाओगे. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैथ्स क्लास टेकन बाय एन एक्सपर्ट एंड टेकन बाय अ स्टूडेंट, राइट? सो उस चीज को, कॉन्सेप्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आपको चूज करना है कि आप क्या करने वाले हो. इट विल बी अ स्मार्ट चॉइस. हर किसी का अपना तरीका होगा बात करने का मेकअप के बारे में, लेकिन आप कितना किस रेशो में बात कर रहे हो अपने थीम के बारे में, अपने मेकअप के बारे में. बिकॉज सी, अगर यू नो आई स्टार्ट विद माई थीम, कि सपोज मैंने बंगाली लुक किया है, तो आई कैन टॉक अबाउट दैट, ओके, आई एम रिप्रेजेंटिंग द कल्चर ऑफ बंगाल एंड एवरीथिंग, एंड बट टू represent that culture I have made sure my eyes look correct, because Bengali features, you know, they focus on the eye makeup very specifically. So वो एक connect बनाना है. You need to connect the dots very very carefully, because वो 90 seconds है and आपको बहुत सही तरीके से connect बनाना है, ताकि पूरा जो information है वो boring लगने के बजाय it's, you know, conveys the right kind of method and the theme that you want to portray. So you have to make sure it does not sound boring. And उसके लिए एक ही तरीका है, अपने friends के साथ, अपने भाई बहन के साथ, अपनी family के साथ Zoom meetings करना शुरू करो. Look how you are looking on a meeting, look how you are talking, आपकी voice कैसी जाती है, because trust me, हमारी जो normal voice होती है और जो technical voice होती है, बहुत फर्क होता है, वो अलग तरीके से जाती है Zoom के through जो voice होती है. So you need to be very conscious of these things, okay? So practice and realize कि आपका content कहाँ boring हो रहा है, वहीं उसको change कर दो. ठीक है, और ऐसा कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है कि इसी के बारे में बात करना है, इसी के बारे में बात करना है. थोड़ा गट इंस्टिंक्ट लगाओ यार, आप लोग भी स्मार्ट लोग हो, आप लोग ऑडिशन क्लियर करके यहाँ पे पहुंचे हो. ऐसा नहीं है कि सब बता रहे हैं तो सब पूछ लो. आप थोड़े दिन में मुझे ऐसा लग रहा है आप बोलोगे जया और हैरी मैम आप ना करके ही दिखा दो एक बार टैलेंट राउंड, तो वो हो जाएगा, वो वाली बात हो जाएगी. ऐसा नहीं करना है. थोड़ा आप लोग भी स्मार्ट हो, बस अभी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है तो इसको प्रोसेस करना है, इसको इतना वो नहीं करना है. ठीक है, क्योंकि आप जैसे जैसे अपने पुराने बैचेस के वीडियोस देखोगे आपको सब समझ आ जाएगा. एंड वी विल मीट अगेन फॉर एवरी ट्रेनिंग सेशन, सो डोंट वरी. Shall we? Do you still have a question, or is it, you know, have you just typed your name again to me to answer? Okay, you don't have a question. Next is Ashna. Yes, Ashna. Hi, Harry. How are you? I am good. How are you?
I'm good. Well, Harry, I just wanted to know whether even painting has to be done instantly, or we can make it beforehand and present in front of the jury members at the time of talent one round. Depends. See, I am assuming that 90 seconds में कोई painting wind up करना मुश्किल होगा. So do it before. But what you can do is, अगर आपका वो creative talent है, आप कुछ specifically prepare कर सकते हो. You know, you can create something unique to impress the jury members, ताकि वो लगे कि इसने specifically इस talent round के लिए कुछ बनाया. She wanted to convey something. She wanted to add about her personality. So ये चीजें हैं जो extra edge देती हैं आपको. Painting तो बहुत लोगों ने दिखाई है, but मुझे हमेशा लगता है कि जो काफी जिन लोगों ने paintings दिखाई थी, वो एक point उन्होंने miss किया, वो X factor, कि अगर आप imagine, अगर मैं specifically मुझे painting आती है, पर मैं specially कुछ बनाती हूँ, कुछ convey करने के लिए, तो imagine the impression it makes. It shows how committed and serious I am about this practice. Yeah. Make sense? Right. Okay. Makes sense. Great. Thank you. Most welcome. Yes, Divya Moradia. Yes, Divya. Hello, ma'am. Hi, Divya. Where are you? Why can't I see you? Hanji, bolo. Hanji, tell me. Hello, ma'am. How are you? I am good. How are you? I'm good, ma'am. तो मैम हमारे टैलेंट राउंड 1 हो गया है, तो उसका रिजल्ट अभी कब आएगा? जल्दी आ जाएगा. रिजल्ट की क्यों टेंशन है? अभी तो बहुत टाइम है. अभी तो आगे बड़े एग्जाम देने हैं. रिजल्ट की टेंशन तब लेते हैं जब सब कुछ डन वन हो जाता है. तो अभी तो तैयारी है, बट इट विल बी अपलोडेड सून. और हमारा ट्रेनिंग सेशन 2 कब? नेक्स्ट वीक में होगा? नेक्स्ट वीक. आई थिंक इट्स गोना बी ईदर ट्यूसडे और वेडनेसडे. ओके मैम. थैंक यू सो मच. वेलकम. Payal Yadav. Yes, Payal. Hello, ma'am. Good evening. Good evening, Payal. Where is the energy? What happened? Why are you so low? Actually, sorry, ma'am. मैंने वीडियो भी ऑफ किया. मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, so. Okay. बोलिए. मैम मेरे को तो ये पूछना था कि हमें हमारे बैच नंबर कैसे पता चलेगा, क्योंकि YouTube पे भी जो रिकॉर्डेड वीडियो ढूंढने में काफी मुश्किल होता है. बहुत ज्यादा वीडियोस होते हैं, तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है. ओके. सो पायल, आपको आपका बैच जब भी अब नेक्स्ट लिंक आए ना, तो उसी लिंक पे एक बार मैसेज ड्रॉप कर देना प्लीज, मुझे मेरा बैच बता दीजिए. तो वो उसी टाइम इमीडिएटली, बिकॉज अभी मैं आपको कुछ गलत या कंफ्यूजन में बताना नहीं चाहती हूँ. बट डोंट वरी, इट्स नॉट समथिंग टू वरी अबाउट. अगर आपके पास लिंक आ रहा है तो आप उसी बैच में होंगे. सो जब भी नेक्स्ट लिंक आए तो एक मैसेज ड्रॉप कर देना, ठीक है? ओके मैम. एंड एक मैम, ये यूट्यूब पे जैसे ऑडिशन राउंड्स वगैरह, जैसे कोई भी वीडियो होता है उसमें राउंड नंबर लिखे होते हैं, तो ये हमारा कोई स्पेशल राउंड नंबर है या फिर हमें वैसे ही? वो ऑडिशन का वॉल्यूम लिखा होता है कि कितना नंबर ऑफ ऑडिशन वो डाल रहा है. तो अगर आपका 98 था तो आपके वहां पे लिखा होगा वॉल्यूम 98. तो उसकी आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है, वो सिर्फ टेक्निकल. नहीं मैम, एक्चुअली वो उसको मतलब जैसे सर्च करने में थोड़ा सा इजी हो जाता है ना. वो हमारा जैसे खुद का वीडियो हमें देखना है तो बहुत ज्यादा वीडियोस होते हैं. तो सेलिब्रिटी फीलिंग लेनी है यूट्यूब पे वीडियो देख. बट वो आप थोड़ा रिसर्च कीजिए उसके लिए, क्योंकि अभी मैं आपको इस पे क्लैरिटी नहीं दे पाऊंगी. बिकॉज सी जितने भी ऑडिशंस होते हैं उसमें से सिलेक्ट बहुत कम होते हैं, राइट? सो ऐसे मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं लगेगा, ना ही टीम को लगेगा कि आपका ऑडिशन कब था. तो आप उसी हिसाब से थोड़ा पीछे जाइए, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, एंड आई एम श्योर यू विल फाइंड द वीडियो. ओके मैम, थैंक यू. सो आपने जब भी अपीयर किया था ना पायल, उसके कुछ 5-6 दिन बाद ही उसी वीक के अंदर यूजुअली अपलोड हो जाती है. नहीं मैम, एक्चुअली ऑडिशन के लिए नहीं. जैसे अभी मैंने आज थोड़ा लेट ज्वाइन किया था तबीयत डाउन होने की वजह से, तो जैसे कि इसका मुझे रिकॉर्ड वीडियो तो इसका वीडियो डलेगा मंडे या ट्यूसडे तक, ठीक है? ओके. ऐसे हर रिकॉर्डिंग 3 से 4 दिन के अंदर डलती है, नॉट इमीडिएटली. तो आप YouTube कॉन्स्टेंटली चेक कीजिए, आप हर वीडियो से अपडेटेड रहें कि क्या हो रहा है क्या नहीं. इट विल ऑल्सो गिव यू क्लैरिटी. Okay, ma'am. Thank you. Most welcome. Dimpy, do you still have a question? Yes, ma'am. Yes. Ma'am, first Stellito. मैम कहाँ से परचेज करनी है, क्योंकि हमने पहले एक्चुअली एक कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था एंड इट टुक मी वेरी, मतलब बहुत प्रॉब्लम हुई हमें ढूंढने में. और जो स्टेलिटो में मिली वो वहाँ जाके मतलब ऑन द रैम्प इट वाज ब्रेकन. तो आई नीड टू नो वेयर वी विल बाय दिस स्टेलिटो, प्रॉपर स्टेलिटो, so that we can start doing ramp walking at our home. Dimpy, that is a very difficult question to answer यार. How do I tell you कहाँ से खरीदना है? Ma'am, I think online options हैं यार बहुत सारे. Everything is available online.
फुटवियर ऑनलाइन बड़ा प्रॉब्लम है, वापस करना फिर लाना, मतलब कई बार साइज नहीं मिलते हैं। तो मैम कोई प्रॉपर आपको कुछ पता हो, आई मीन यू गाइस हैव अ कनेक्शन विद सम फुटवियर पीपल? नहीं यार, मुझे जेन्युइनली नहीं पता है, टू बी ऑनेस्ट। एंड मैं थोड़ी पार्टिसिपेंट हूँ, मुझे थोड़ी सेल्टोस पहनना नो है। मैम, इतने स्टूडेंट्स को आप रैंप वॉक करा चुके हो तो थोड़ा सा आइडिया हो जाता है, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। Jaya I might just- have an answer. I do not have not walking in the heels, but yeah, if you ask the same question to the trainers, then they might help. The trainer might be able to help. Yeah. ओके मैम। एंड मैम एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा था यूट्यूब पे, मैम हमें जो हमारा बैच है वो क्लियर नहीं है कौन सा बैच है। आई मीन इट इज अ कैटेगरी से रिलेटेड है मैम, क्योंकि जो रिपोर्ट आई थी इसमें कैटेगरी से रिलेटेड नहीं है। मिस और मिसेस हमेशा मिक्स्ड ही रहेंगे, उसमें आपका अलग अलग नहीं रहेगा, आपके टैलेंट राउंड भी एक साथ ही रहेंगे। हमारा जजमेंट क्राइटेरिया वो हमारी जिम्मेदारी है। सो ऐसा नहीं है कि एक बैच में सिर्फ मिस है, एक बैच में मिसेस है, ऐसा स्टेट वाइज भी कोई कैटेगराइजेशन नहीं है। बैचेस क्रिएट होते हैं जैसे जैसे ऑडिशंस क्लियर होते हैं, ठीक है। सो आपको मैंने जैसे कि बोला, जिसको भी बैच का कंफ्यूजन है, जैसे ही आपको अगला लिंक आएगा वहीं पे एक मैसेज ड्रॉप करना है कि प्लीज मुझे मेरी बैच की क्लैरिटी दे दीजिए, वो आपको पूरा बैच बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।